आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। To maintain the electricity, it is important to know the basics. So what is electricity? Electricity कैसे काम करती है? The presence and motion of matter that has the property of electric charge is known as electricity. इलेक्ट्रिक चार्ज का मौजूद होना या स्थलांतरित होना इसे इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। Now we will learn basic parameters of electricity. शुरुआत करते हैं वोल्टेज से। What is voltage? Voltage is the potential difference between any two points. वोल्टेज एक बल है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। Now we will learn about current. करंट क्या है? Current is rate of flow of electrons when the voltage is applied. वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसे करंट कहते हैं। Now we will look at resistance. What is resistance? Resistance क्या है? It is property of any material to oppose the flow of current. करंट बहने से रोकने की क्षमता को रेजिस्टेंस कहते हैं। Let's look at inductance and capacitance. Inductance और capacitance क्या है? Inductance is the property of a coil to oppose sudden change in current, while capacitor stores the charge and opposes sudden change in voltage. इंडक्टर करंट के अचानक होने वाले बदलाव को रोकता है। कैपेसिटर वोल्टेज में होने वाले अचानक बदलाव को रोकता है। Wherever there is a coil, there is inductance effect. When two conductors are separated by dielectric material, the capacitance effect is present. वोल्टेज को वोल्ट्स में गिनते हैं, करंट को एम्पियर्स में गिनते हैं, रेजिस्टेंस को ओम्स में गिनते हैं, इंडक्टेंस को हेनरी में गिनते हैं और कैपेसिटेंस को फैराड में गिनते हैं। Now we will learn about power. There are three types of power in electrical system. Electrical system में तीन तरह के power होते हैं। First is apparent power, second is real power and third is reactive power. एक apparent power है जो DG, ट्रांसफार्मर, UPS इनसे मिलती है। एक होती है real power जो एक्चुअल यूज होने वाली पावर है और जिससे हमारे सभी काम होते हैं। और इंडक्टिव सर्किट्स को प्रॉपरली काम करने के लिए जो पावर नेसेसरी है, ज़रूरी है, उसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। वी मेजर अपरेंट पावर इन kVA बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लोड एंड पावर फैक्टर। अपरेंट पावर को kVA में इसलिए गिनते हैं क्योंकि उसका खुद का पावर फैक्टर नहीं रहता। रियल पावर इज मेजर्ड इन वैट्स और किलोवाट। रियल पावर को वैट या किलोवाट में गिनते हैं और इसका खुद का पावर फैक्टर रहता है। Presence of reactive power makes impact on utilities which provide electricity to various consumers. Reactive power से होने वाले effects minimize करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। Reactive power is measured in kVAR. अब हम जानेंगे पावर फैक्टर के बारे में। We will learn about power factor. Power factor is the ratio of real power absorbed by the load to apparent power flowing in the circuit. पावर फैक्टर भागाकार है रियल पावर और apparent पावर का। पावर फैक्टर नियर टू द यूनिटी और 1 is considered to be the best. If a company maintains power factor between 0.975 to unity, then it gets incentive. सिस्टम में जितनी रिएक्टिव पावर होती है उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए उसी साइज की कैपेसिटर बैंक बिठाई जाती है, या फिर जिसे हम APFC कहते हैं, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। कैपेसिटर प्रोवाइड्स लीडिंग करंट विच कॉम्पेंसेट्स लैगिंग करंट ऑफ रिएक्टिव पावर, thus मेंटेनिंग पावर फैक्टर नियर टू द यूनिटी। पावर फैक्टर 0.975 के जितना नीचे जाएगा या फिर 1 के जितना ऊपर, तो दोनों केस में पेनल्टी लग सकती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट थ्री फेज एंड सिंगल फेज सिस्टम। थ्री फेज और सिंगल फेज सिस्टम को जानेंगे। A three-phase system has three phases, namely R, Y, and B, and if they are connected in star pattern with each other, then we get one neutral point. In balanced system, current doesn't flow through neutral. In case of unbalanced system or in fault condition, the current flows through neutral. Body of almost all electrical equipment is connected to the ground, so to avoid damage to the operator and the equipment. थ्री फेज सिस्टम में तीन फेजेस और एक न्यूट्रल होती है जो कि मिलती है स्टार कनेक्शन से। बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में
न्यूट्रल से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अगर फॉल्ट आता है या फिर अनबैलेंस सिस्टम होती है तो न्यूट्रल से करंट फ्लो होता है। सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या फिर अप्लायंसेस को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉल्ट होता है तो किसी ऑपरेटर को या फिर डिवाइस को नुकसान ना हो। इन सिंगल फेज सिस्टम वी टेक वन फेज फ्रॉम ऑल थ्री एंड वन न्यूट्रल एंड कनेक्ट टू द लोड। सिंगल फेज सिस्टम में हम एक फेज और एक न्यूट्रल को लोड से कनेक्ट करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। इन एसी करंट, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी टाइम्स अ साइन वेव रिपीट्स इटसेल्फ इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकेंड में कितने बार जो साइन वेव साइकिल है वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में गिनते हैं। इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और बिजली पे चलने वाले सभी उपकरण ज़्यादातर इसी फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए डेवलप किए जाते हैं। Now we will learn about load and demand factor. Demand factor is the ratio of maximum load in given time period to the maximum possible load. कंसिडर करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अगर 50 वाट हमारा लोड कनेक्टेड है और हमारा पूरा कनेक्ट हो सकने वाला लोड है 100 वाट, तो 50 वाट को अगर 100 वाट से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ये आंसर मिलता है। तो हमारा जो डिमांड फैक्टर है वो है 0.5। लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम लोड इन अ गिवन टाइम पीरियड। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं कि 10,000 किलोवाट आवर हमारा एवरेज लोड है और उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मतलब एक महीने का अगर पकड़ के चलते हैं तो उसमें होते हैं 30 दिन और 24 घंटे। तो 30 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू सपोज 100 किलोवाट हमारा मैक्सिमम लोड है, जिससे मिलता है 0.13 और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 13.88%। लोड फैक्टर ज़्यादा होगा तो ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम को इफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम डिमांड क्या है, सैंक्शन लोड और कनेक्टेड लोड क्या है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। मैक्सिमम डिमांड से पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे प्लांट को लगने वाली है। मैक्सिमम डिमांड निकालने के लिए कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है, जैसे कि कनेक्टेड लोड जो कि टोटल कनेक्टेड लोड इन द फैसिलिटी है और जो किलोवाट में हमें मिलेगा। फिर है लोड फैक्टर जो यूटिलिटी फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके मिलता है। और तीसरा है पावर फैक्टर जो सिस्टम का एवरेज पावर फैक्टर होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा अगर टोटल कनेक्टेड लोड 6500 किलोवाट है और हमारा स्टील का प्लांट है तो लोड फैक्टर हमने 0.4 कंसीडर किया है और सिस्टम का एवरेज पावर फैक्टर है 0.95। तो मैक्सिमम डिमांड हमें मिल रहा है 2737 kVA। सैंक्शन लोड का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितना लोड आप आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पे दे सकते हैं, और कनेक्टेड लोड का मतलब है कि मैक्सिमम कितना लोड आपने आपके सिस्टम में कनेक्ट किया है। कनेक्टेड लोड अगर सैंक्शन लोड से ज़्यादा होता है तो पेनल्टी लगती है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है तो ज़्यादा यूनिट देते हैं। ये यूनिट रिकॉर्ड करने को जो मीटर लगाया जाता है उसकी भी एक लिमिट रहती है। इसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10 तो इसका मतलब है कि जब 10 यूनिट गिरेंगे तो मीटर में 1 यूनिट वो दिखाएगा। तो रियल कंजम्पशन जानने के लिए हम अंत में जो रीडिंग ली है उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स लर्न अबाउट की कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच इंक्लूड्स रिले, सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर्स। अब जानते हैं कि रिले, सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर क्या रहते हैं। Relay is a device which senses a fault in the system, after which it gives command to circuit breaker to break the circuit. There are various types of relays depending on various types of faults. Unlike a fuse, a circuit breaker makes and breaks the circuit. Various types of circuit breakers are present in the market based on various types of fire extinguishing mediums. VCB and SF6 circuit breakers are used in HT type of electrical system. For LT system, we use ACB air circuit breaker or MCCB or MCB. For earth leakage and neutral unbalanced protection, we use ELCB, RCCB or RCBOs, which are latest.
Isolators are also used in electrical system to isolate one circuit from the other in case of preventive maintenance or in case of replacement of a faulty device. However, they do not provide any kind of protection like circuit breaker. अलग अलग टाइप के रिले यूज होते हैं अलग अलग टाइप के फॉल्ट्स डिटेक्ट करने के लिए। जब सिस्टम में फॉल्ट होता है तो रिले फॉल्ट सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप की कमांड देता है। सर्किट ब्रेकर का काम है फॉल्टी सर्किट को हेल्दी सर्किट से अलग करना। एलटी सिस्टम में हम एयर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी, एमसीबी जैसे सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं और एचटी सिस्टम में हम पीसीबी और SF6 तरह के सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। आइसोलेटर एक स्विच की तरह काम करता है जो सिर्फ ऑन या फिर ऑफ का काम कर सकता है, वो किसी सर्किट ब्रेकर की तरह कोई प्रोटेक्शन दे नहीं सकता। नाउ वी विल लुक एट रिंगमैन यूनिट सिस्टम। अब देखते हैं कि रिंगमैन यूनिट सिस्टम क्या होती है। इन अर्लियर डेज when there used to occur a fault, entire load on that particular unit used to get affected. So now we have adopted Ringman type unit system. In this system, at least two different sources are connected to the same distribution network. So in case a fault occurred at one source, the power supply continuity remains from the second source. Various types of RMUs are present in the market depending on the configuration. पुराने दिनों में जब कोई फॉल्ट आता था तो एक पूरे हिस्से की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कट हो जाती थी। ये इलेक्ट्रिसिटी कायम रखने के लिए हम लोगों ने अभी रिंगमैन टाइप यूनिट सिस्टम अडॉप्ट की है, जिसमें दो अलग सोर्सेज से कनेक्शन एक ही जगह आते हैं। अगर एक सोर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो जो कनेक्शन है दूसरे सोर्स से कंप्लीट किया जाता है। RMU में प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर और रिले का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी को और गहराई से जाने और सुरक्षित रहे। कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।